Welcome to CVR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the morning news. On day 3 of Democratic National Convention 2024, speaking to media, Democratic Party's leaders expressed their views on US election and US-India relation. Democratic Party's Congressman Don Bass said India and US have a very healthy relationship. President Biden's relationship with PM Modi has been strong. We have an enormous Indian American population in US. Having the first woman of Indian descent as our president will send a very good message. Democratic Party's Congressman Jonathan Jackson said she has got the blood of two continents. She got the blood of the diaspora raised in America by an Asian mother. She is America in so many ways. She is most qualified this time to be at the top of this decade. Females have done all the highest roles in government except for the presidency. Young girls will now look to the future and say, of course, this can happen. Healthy for the India-U.S. relationship. It's already very healthy. Sometimes we get concerned about how close India is buying oil and gas from Russia. But the President Biden's relationship with President Modi has been very strong. And we have an enormous Indian American population in the United States, leading so many businesses, professors in universities, lots of small businesses. Having the first woman of Indian descent be the first woman and the first person of Indian descent as our president will send a very good message to the 1.5 billion people who live on the subcontinent. No, and I would tell you why. It was a big idea when my father had Mr. Ron Brown to get elected to be the DNC chairman. That was something new. It was a big idea to talk about a woman being on the ticket. It was a big idea to talk about a free South African and free Nelson Mandela, a two-state solution in the Middle East. And now this is commonplace. We've seen a president, a female Democratic nominee before, Mrs. Hillary Clinton. Now we see another Democratic nominee that's a female, and Ms. Harris. We've seen a vice president to be a female. That this is now the new norm, and that's great. So our expectations have risen, and now we can meet them. We don't have to look at floors. Now we're looking at ceilings being removed, not just glass ceilings, but concrete ceilings. And let us recognize women in leadership. Well, this convention is definitely showing Democratic unity the way it would not have been a month ago. I mean, if Joe Biden were still the Democratic candidate, there's virtually no way we would be seeing this level of enthusiasm. In fact, a lot of questions will be asked about whether or not he can stay in this race and whether he can win. What is different now is that there's enthusiasm because they believe that Kamala Harris could win this race. They believe that she is actually someone who could bring in a new coalition of voters, potentially attract Republican voters and get them over the finish line. I would say there's probably more enthusiasm now than there was in the Hillary Clinton convention, in large part because people are really energized in the Democratic Party about trying to stop Donald Trump. They believe that she's a candidate who can do that. There's a view back in the Hillary Clinton days that she was the favorite, that Donald Trump really had no shot. It was a much different view within the party when it was Clinton versus Trump versus Harris versus Trump. However, comparing it to 2008 is much different. And Barack Obama brought in a whole different level of energy. I don't think you could really compare what Kamala Harris is to Barack Obama. It was a whole different Democratic Party back then, a whole different generation of candidate and the like. But nevertheless, you are seeing a Democratic Party that has its base. Prime Minister Narendra Modi today left our two-nation visit where he will visit Poland and Ukraine. According to the Ministry of External Affairs, the Prime Minister will first visit Poland from August 21 to 22 and then leave for Kyiv on August 23. This will be the first visit of Prime Minister of India to Poland in the last 45 years. Earlier in 1979, then PM Morarji Desai and visited Warsaw. The year 2024 is celebrating the 70th anniversary of the establishment of diplomatic relationship between India and Poland. During his visit, PM Modi will meet his Polish counterpart Donald Tusk and will also meet Polish President Andrzej Duda. And the Indian community, the NRIs, have expressed their happiness over this visit of PM Modi. हिंदुस्तान के साथ उन्हें भी खुशी है कि 45 साल के बाद हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर पोलैंड आ रहे हैं। पूरी हमारी इंडियन कम्युनिटी देखिए, सब कुछ लगे पड़े हुए, एंजॉयमेंट लगी पड़ी है। देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट
Indians are really waiting for this historic visit of Indian Prime Minister to Poland, you know. आज हम लोग सब बाहर रहते हैं, लेकिन बाहर रहने में हमारा गर्व से सर ऊपर है। 37 साल में हम तो वेट करते रह गए कि हमारे प्रधानमंत्री आएंगे। अब मैं आपसे जब बात कर रहा हूं, मेरी आवाज कांप रही है, जो कि फाइनली हमारे प्रिय प्रधानमंत्री पोलैंड आ रहे हैं। सारी कम्युनिटियों से इंडियन कम्युनिटी बहुत खुश है। उसके अलावा पोलिश लोग भी जो है जो जुड़े हुए हैं हिंदुस्तान के साथ, उन्हें भी खुशी है कि 45 साल के बाद हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर पोलैंड आ रहे हैं। तो तैयारियां बहुत हैं, अभी देखते हैं दिन आगे क्या चलता है। यहाँ पे आज इस वक्त तो जब प्राइम मिनिस्टर जी आएंगे यहाँ पे, तो उनको कम से कम 200 के करीब लोग वेलकम करेंगे। कुछ एक डांस परफॉर्मेंस है उनके लिए गरबा का, और फिर उसके इंटरेक्शन, और फिर बाद में प्रधानमंत्री जी जाएंगे रीत सेरेमनी के लिए जाम साहब के मेमोरियल पे, कोल्हापुर मेमोरियल, और मोंटे कैसीनो जहाँ पे हमारे सिख भाइयों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश आर्मी के अंडर लड़ाई की थी। उसके बाद शाम को कम्युनिटी साथ मीटिंग है जहाँ पे थोड़ा लार्जर ग्रुप आएगा। ये तो हमारे लिए बहुत एक्साइटमेंट की बात है। पहली बार 45 इयर्स के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर पोलैंड आ रहा है। पूरी हमारी इंडियन कम्युनिटी देखिए, सब कुछ लगे पड़े हुए, एंजॉयमेंट लगी पड़ी है। ये उनकी विजिट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पोलैंड और इंडिया का रिलेशन भी इम्प्रूव करेगी, इन्वेस्टमेंट भी आएगी इंडिया में, हो सकता है पोलैंड से, तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, इंडियन डायस्पोरा पोलैंड में काफी वाइब्रेंट है, और पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग लोग स्टेट्स में और अलग अलग सिटीज में इंडियन कम्युनिटी रहती है। यहाँ पर दिवाली, होली, हर सेलिब्रेशन, हर इवेंट का सेलिब्रेशन, हर फेस्टिवल का सेलिब्रेशन होता है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। इंडियंस आर रियली वेटिंग फॉर दिस हिस्टोरिक विजिट ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू पोलैंड, यू नो। क्रैको शहर से आया हूँ, 300 किलोमीटर ड्राइव करके आया हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को ये हमारा सौभाग्य है कि उनके साथ हमारे दर्शन होंगे इस बार। तो काफी तैयारियां हैं, जैसे कि आप लोग सब देख ही सकते हैं। हम लोग सब बहुत ही ज्यादा गर्व अनुभव कर रहे हैं और काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है लोगों में। देखिए, मुझे लगता है कि हमें उनके जैसे निडर और सशक्त नेता और उनके नेतृत्व की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अगर जब तक वो रहेगा, आज हम लोग सब बाहर रहते हैं, लेकिन बाहर रहने में हमारा गर्व से सर ऊपर है, क्योंकि आज भारत को जिस मानचित्र पर उन्होंने वो लेकर गए हैं, जिस चरम सीमा पर लेकर गए हैं, जो उपलब्धियां हमारी हुई हैं आज तक, मेरे ख्याल से ये अकल्पनीय है। और वास्तविकता यही है कि उनके जैसे नेता की हमें बहुत बहुत आवश्यकता है। तो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। 37 साल में हम तो वेट करते रह गए कि हमारे प्रधानमंत्री आएंगे। अब मैं आपसे जब बात कर रहा हूं, मेरी आवाज कांप रही है, जो कि फाइनली हमारे प्रिय प्रधानमंत्री पोलैंड आ रहे हैं, और हमारे भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि पोलैंड में हमें बहुत इज्जत दिया जाता है, पर प्रधानमंत्री जब आते हैं तो क्या कहते हैं, उसके बाद तो PM Narendra Modi has reached Poland from India. He is the first PM to visit Poland in 45 years. The enthusiasm among the people of Indian origin is visible for his visit, where they have made special preparations. On his arrival at the hotel, he will be welcomed with a traditional dance in which people of Indian origin and Poland will perform together. हम लोग 7 साल में 8 साल से हूँ, लेकिन हमारा समर्पण डांस ग्रुप 7 साल से है यहाँ पे। प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, आपने उनके लिए जो प्रस्तुत किया है उसके बारे में थोड़ा बताएं, और कितना एक्साइटेड हैं प्रधानमंत्री उनके सामने करेंगे? बहुत एक्साइटेड है। जब हमें पता चला हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, सारे लोग वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दिस, एंड मुझे पता है मोदी जी बहुत ही खुश होंगे, सरप्राइज भी होंगे जब देखेंगे इंडियन और पॉलिश, इंडो पॉलिश दोनों मिलकर परफॉर्म कर रहे हैं, तो
बहुत एक्साइटेड है, डेफिनेटली वी विल बी हैव फन। सर हम एक्चुअली बहुत लकी है, ग्रेटफुल भी फील कर रहे हैं। हम अभी फ्रांस जाकर रिप्रेजेंट करके आए हमारे देश को, और उसी की दौरान ही हमारा ये मौका मिल रहा है हमें, तो हम बहुत ही एक्साइटेड इसके लिए। हम पिछले 6 साल से यहाँ पर कंटिन्यूसली गरबा का प्रचार कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। हम बच्चों को भी सिखा रहे हैं, सबको गरबा करना चाहिए, कैसी मूवमेंट होती है, कैसा हैप्पी डांस होता है, पॉजिटिव है। हम वही में लगे हुए हैं। हम इंडिया में गुजरात से है और हम पोलैंड में 7 साल से है यहाँ पे। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे गुजरात से ही। Yes. आप गुजराती में अगर उनको कुछ कहना चाहेंगे? હેલો પીએમ સર, વી આર વેરી ગ્રેટફુલ કે તમે અહીંયા આવો છો અને અમે તમારો જ ડાન્સ તમારી સામે People's Democratic Party Chief Mehbooba Mufti on August 21st said that considering the current situation, people joining her party makes the voice of the people of Jammu and Kashmir strong. While addressing a press conference, PDP Chief Mehbooba Mufti said Jammu and Kashmir has been going through a tough period for the last 5 years. Situation is such that there is a fear among people. No one show it, but it's there. In the situation when people join us, they strengthen our party, in turn making the voice of the people of Jammu and Kashmir strong. इस वक्त हमारी जमात क्या पूरा जम्मू कश्मीर पिछले 5 साल से बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हालात ऐसे हैं कि बात करके भी बात नहीं की जाती है, डर है, खौफ है, कोई दिखाता नहीं पर अंदर से सबको डर है, मुश्किलात हैं। तो ऐसे में जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी पार्टी को मजबूत बनाते हैं, तो उससे जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ मजबूत बन जाती है कि यहाँ बात करने की ज़रूरत है। मुश्किलात है। मुफ्ती साहब ने अपने बहुत कम कलील वक्त में जम्मू कश्मीर में एक नया दौर तरक्की का शुरू किया था, अमन का दौर। अमन तो कब्रिस्तान में भी होता है, मगर इज्जत से अमन, जिसमें लोग जिए, बात करें, सर उठा के चलें। तो हम उसी अमन को चाहते हैं और मुझे खुशी है कि आज कमर साहब हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये पीडीपी की जो हमारा एजेंडा है, पीडीपी की जो हमारी ख्वाहिश है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस मुसीबत से, इस दलदल से निकालना है, उसमें पूरी मदद करेंगे। और इंशाल्लाह मेरी तरफ से इनको पूरी जो है नेक ख्वाहिशात हैं कि ये आगे चले और जमात को भी कामयाब करें और खुद भी कामयाब हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारी जमात क्या पूरा जम्मू कश्मीर पिछले 5 साल से बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हालात ऐसे हैं कि बात करके भी बात नहीं की जाती है, डर है, खौफ है, कोई दिखाता नहीं पर अंदर से सबको डर है, मुश्किलात हैं। तो ऐसे में जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी पार्टी को मजबूत बनाते हैं, तो उससे जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ मजबूत बन जाती है कि यहाँ बात करने की ज़रूरत है। मुश्किलात है। मुफ्ती साहब ने अपने बहुत कम कलील वक्त में जम्मू कश्मीर में एक नया दौर तरक्की का शुरू किया था, अमन का दौर। अमन तो कब्रिस्तान में भी होता है, मगर इज्जत से अमन, जिसमें लोग जिए, बात करें, सर उठा के चलें। तो हम उसी अमन को चाहते हैं और मुझे खुशी है कि आज कमर साहब हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये पीडीपी की जो हमारा एजेंडा है, पीडीपी की जो हमारी ख्वाहिश है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस मुसीबत से, इस दलदल से निकालना है, उसमें पूरी मदद करेंगे। और इंशाल्लाह मेरी तरफ से इनको पूरी जो है नेक ख्वाहिशात हैं कि ये आगे चले और जमात को भी कामयाब करें और खुद भी कामयाब हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारी जमात क्या पूरा जम्मू कश्मीर पिछले 5 साल से बहुत मुश्किल दौर से गुजरा। Chhattisgarh Deputy Chief Minister Arun Savu on August 21st criticized the West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee over the rape and murder of a trainee doctor in Kolkata and said that strict action should be taken against the culprits. The incident at Kolkata Medical College is very unfortunate, shameful, and the role of the state government. And Chief Minister Mamata Banerjee after that incident is condemnable. A CBI inquiry has been ordered. Strict action should be taken against the culprits. कि जो मेडिकल कॉलेज की घटना है बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना है, शर्मसार करने वाली घटना है।
और उस घटना के बाद जो राज्य सरकार की भूमिका थी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जो भूमिका थी, वो तो और बहुत निंदनीय है। स्वयं बेटी होकर एक डॉक्टर बेटी के साथ जो इतनी बड़ी घटना हुई, इतना बड़ा घिनौना अपराध हुआ, और निश्चित रूप से सीबीआई इंक्वायरी का आदेश हुआ है। दोषियों पर कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। कोलकाता के जो मेडिकल कॉलेज की घटना है, बहुत ही Prime Minister Narendra Modi left for a two-nation visit too, after which he has reached Poland. According to the Ministry of External Affairs, the Prime Minister will first stay in Poland on 21st and 22 August and then leave for Kyiv on 23rd August. This is the first visit of any Prime Minister of India to Poland in the last 45 years. Earlier in 1979, the PM Modi, Morarji Desai, had visited for the 70th anniversary of the establishment of diplomatic relations between India and Poland is being celebrated in the year 2024. Heavy rainfall has led to flood-like situations in Tripura's Agartala on August 21st. Tripura Chief Minister Malik Saha coming in a boat to inspect flood-affected areas amid heavy rains. Meanwhile, state government announced the closure of all schools till August 22. According to IMD, very heavy rainfall is expected to continue to the rain.
A fire broke out in the attic portion of a hotel near Abdullah Bridge in Srinagar on August 21st. 5 fire attendants reached the spot and doused the fire. The cause of the incident is still unknown. Further details are awaited. के बारे में पहले जानना चाहेंगे। सराउंडिंग में सारे गेस्ट हाउसेस, होटल्स हैं, ये कौन से पर्पस यहाँ पे आ रहा है? देखिए, ये राजबाग एरिया है और हमें हमारे स्टेट कंट्रोल रूम को 1:40 पे इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे फायर इंसिडेंट हुआ है। इमीडिएटली जो हमारे 3 नियर बाय फायर स्टेशन है, हेडक्वार्टर, गवकदल और बाबडेम, हमने तीनों को प्रेस किया इनटू सर्विस। जब हम यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे हमने देखा कि होटल लकी अकबर नाम से ये होटल है और ये 5 स्टोरी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो एटिक पोर्शन है वो इन्वॉल्व था फायर में। इंस्टेंटली हमने फायर फाइटिंग ऑपरेशन लॉन्च किया और हमारे फाइटर्स ने काफी अच्छा काम किया। उन्होंने फायर को कन्फाइन किया, जैसा आप देख सकते हैं। इसके सराउंडिंग में भी काफी स्ट्रक्चर्स है और फॉर्चुनेटली इसमें कोई जानी नुकसान नहीं है। माली नुकसान थोड़ा है लेकिन जानी नुकसान कोई नहीं है। बाकी फायर फाइटर्स ने बहुत ही जबरदस्त काम किया and we are quite successful in confining the fire to the involved property. कंप्लेंट जो सिर्फ यहाँ नहीं, हर जगह में सुनने को मिलती है। अगर किसी जगह कंजेक्टेड है तो मगर जहाँ पे कुशादा जगह है वहाँ पे फायर टेंडर्स क्यों नहीं रखे जाते? जैसे यहाँ भी लोग हैं, बोला यहाँ पर जागर्स पार्क के लिए की जगह है, बटमालों के बजाय अगर यहीं पर होता तो शायद जल्दी हो। देखिए, जो हमारे फायर टेंडर्स की एस्टेब्लिशमेंट का सवाल है तो वो बेस्ड ऑन SFEC गाइडलाइंस होते हैं। जो स्टैंडिंग फायर एडवाइजरी कमेटी है उनके तहत उसके नॉर्म्स होते हैं। अगर वो नॉर्म सेटिस्फाई होते हैं तो उस हिसाब से हम फायर टेंडर्स रिकमेंड करते हैं और उस हिसाब से फायर स्टेशन सैंक्शन होते हैं। तो ऐसे रिकमेंडेशंस, ऐसे जो क्वायरीज है काफी हमें आई है, उन पे हमने वर्कआउट भी किया है। जहां जहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ फायर स्टेशन है वहां पे हमने रिकमेंड किया है गवर्नमेंट को फॉर द अकॉर्ड ऑफ सैंक्शन, और जहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है, जहां वो क्वालिफाई नहीं करता, तो वहां पे हम फायर टेंडर रिकमेंड नहीं कर सकते। यहाँ पर कितने फायर टेंडर्स लगे कंट्रोल करने में? अभी यहाँ पे हेडक्वार्टर बाबडेन और गवकदल से। And Maharashtra alleged sexual assault with the girl children at a school in Balpur. Shiva Sena leader Sanjay Nirupam on August 21st said that he met the chairperson of the special investigation team formed by the Home Minister of the state to investigate the case. He further said that the results should come and culprits should be. मुंबई से यहाँ बदलापुर कुलगांव पुलिस स्टेशन आए और यहाँ पर जो सीनियर पीआई हैं उनसे मुलाकात की और एक अच्छा संयोग था कि जो हमारे गृह मंत्री जी ने इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एसआईटी अपॉइंट की है। एसआईटी की चेयरपर्सन जो है प्रमुख हैं आरती सिंह जी, वो भी मिली। और हमारे मन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जितना जल्दी हो रिजल्ट आना चाहिए और जो गुनहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए। तो इसकी जो शुरुआत होगी चार्जशीट से होगी। तो हमने पहला सवाल है कि चार्जशीट कब तक दे देंगे? तो सीनियर पीआई का कहना है कि 5 से 10 दिन के अंदर हम लोग सीनियर चार्जशीट दे सकते हैं ताकि ट्रायल शुरू हो सके। एक बार चार्जशीट फाइल होती है उसके बाद फिर चार्जेस फ्रेम होते हैं, तब फिर ट्रायल शुरू होता है। तो ये सब पूरे प्रक्रिया में 20 दिन 1 महीने के अंदर बहुत कुछ शुरू हो सकता है। और पॉस्को का जो कायदा है उस कायदा में इस प्रकार का प्रावधान है कि ट्रायल बहुत फास्ट होना चाहिए। अगर बहुत फास्ट करना है तो हम उम्मीद करते हैं कि महीने 2 महीने के अंदर न्याय मिल जाएगा। मैं आज बदलापुर के तमाम नागरिकों से यह कहने आया हूं कि पूरी सरकार आपके साथ खड़ी है। Chhattisgarh Deputy Chief Minister Arun Shah said that the incident at Kolkata Medical College is a very unfortunate, shameful incident at the role of the state government, and Chief Minister Mamata Banerjee after that incident is condemnable. A CBI inquiry has been ordered. Strict action should be taken against culprits.
कोलकाता के जो मेडिकल कॉलेज की घटना है बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना है, शर्मसार करने वाली घटना है। और उस घटना के बाद जो राज्य सरकार की भूमिका थी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जो भूमिका थी, वो तो और बहुत निंदनीय है। स्वयं बेटी होकर एक डॉक्टर बेटी के साथ जो इतनी बड़ी घटना हुई, इतना बड़ा घिनौना अपराध हुआ। That's the wrap up of the morning news. Keep watching CBR English.